Namaste. Welcome to the final episode of the first series of Ayur Talks. We have today with us the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who himself is an Ayurveda doctor. We also have Sri Jayant Sahasrabudhe, National Organizing Secretary of Vijnana Bharati. Vijnana Bharati, as we all know, is one of the, if not the largest science movement in the world. Vibha is a vibrant movement for the development of Swadeshi sciences, interlinking traditional and modern sciences adapted to national needs. Vijnana Bharati has 22 units across the country and contacts in 4 states. It is working in 11 areas through the autonomous institutions, independent organizations, and also as project entities. The World Ayurveda Foundation is one of Vibha's daughter organizations working in the area of Ayurveda Renaissance. WAF is better known for the biennial World Ayurveda Congress as it conducts. World Ayurveda Congress is the largest global platform for Ayurveda clinicians, academics, researchers, industry, and other stakeholders. Now, and they exchange their ideas and create new dimensions of growth in this sector. World Ayurveda Congress, which started in 2002, had until now 8 editions of it conducted across the country. The 9th one, hosted for 2020, has been postponed to 2021 owing to the corona pandemic. In the run up to the 9th WAC, World Ayurveda Foundation has organized this interview series, the Ayur Talks. In organizing Ayur Talks, WAF is supported by Journal of Ayurveda Integrative Medicine, the most prominent medical journal in integrative medicine area, which is a considerably good impact, which has considerably good impact factor and citation in the sector, and is published by Elsevier. We are also supported by National Ayurveda Students and Youth Association, the organization of Vijnana Bharati working among the youth of Ayurveda. And this is a national organization with branches and subunits in all states of India. In organizing the series of Ayur Talks, we have been supported financially by Sri Dhut Papeshwar Limited, one of the oldest and most respected industrial houses of Ayurveda. We wholeheartedly thank the management of Sri Dhut Papeshwar Limited for their support for this program. A few words more on Ayur Talks. Ayur Talks is a pursuit in wisdom. The question why leads you to some of the most important discoveries in our life. It helps you to gain clarity, gates us to correct ourselves, understand and overcome conflicts, and be more wise and aware. We ask, why did the policymaker include traditional medicine in COVID management? Why do things happen and why do things do not happen? In Ayur Talks, we ask the question why to some of the most influential persons of Ayurveda and health sector. In their choices and decisions, we ask them why they did it, what they did. We invite you to a journey that shall provide you invaluable insights to the why of things that influence our life and profession, and to the why of the decisions taken, to the factors that influence the influences. Now, may I invite Dr. Pawan Kumar Godatwar to introduce and invite the guests. सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम. जयंत जी, आपको भी प्रणाम. प्रमोद सर, आपका इस प्लेटफॉर्म पे, इस फोरम पे स्वागत है, आयुर टॉक्स पे. मैं अनुमति चाहता हूं कि आपका परिचय वैसे तो सबको है ही, पर फिर भी थोड़ा सा एक औपचारिक परिचय देते हैं आपका. जयंत जी से शुरुआत करता हूं मैं परिचय का. जयंत जी विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे आयुर टॉक्स के मेंटर है. आयुर टॉक्स की जो जननी है वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन, उसके हमारे सबके मेंटर हैं. मैं इनसे अनुमति लेती हूँ, आपका परिचय देता हूँ अपने वाइडर ऑडियंस के लिए. सर थोड़ा सा औपचारिक परिचय. वैसे चीफ मिनिस्टर हैं तो और परिचय की जरूरत नहीं है. डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत, इन्होंने BMS किया है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कि आयुर्वेद के हमारे अपने चीफ मिनिस्टर. शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से इन्होंने BMS किया और पुणे से मास्टर इन सोशल वर्क. इनकी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर भी रह चुके हैं. संखाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA है. चेयरमैन साई नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट संखाली है. एक्स चेयरमैन GSIDC गवर्नमेंट ऑफ गोवा. CCIM मेंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. चेयरमैन ऑफ गोवा यूथ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. डायरेक्टर ऑफ दीनदयाल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. चेयरमैन रविंद्र भवन संखाली.
member of GBISMNH, President Goa Youth Club Federations, स्टेट यूथ अवार्ड से नवाजे गए हैं सर, और कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत काम किया है। गोवा यूथ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सुरला फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, गोवा ट्राइबल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेगुलम महिला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर मुझे क्षमा करें अगर गांव का नाम मैंने गलत लिया हो तो। द गोवा स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन में इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे आयुर्वेद क्षेत्र से निकलकर प्रमोद जी चीफ मिनिस्टर है गोवा स्टेट के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। और मैं गीता जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रश्नोत्तरी का सिलसिला प्रारंभ करें। गीता जी। थैंक यू पवन जी, धन्यवाद। प्रमोद जी सर, हमारा पहले क्वेश्चन ये है आपसे कि कोविड-19 प्रबंधन में आयुष को शामिल करने के आपके निर्णय का क्या समर्थन किया? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आयुर टॉक में यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक थ्रू दिस फोरम, इसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूं। जैन सहस्त्रबुद्धे जी का भी मैं धन्यवाद हूं, और हमारे साथ में डॉक्टर पवन कुमार हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। कोविड-19 डिजीज के बारे में, दिस इज द कोरोना वायरस इज अ नया वायरस है, और कोविड-19 इज अ न्यू डिजीज। इस जैसे कि हम नॉट इन इंडिया बट इट इज होल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर इसके बारे में जब हमें सबसे पहले बड़ा अवेयरनेस हुआ, वही 22 ऑफ द मार्च जनता कर्फ्यू, माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब जनता कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया, तभी कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अवेयरनेस पूरे कंट्री में, पूरे देश में हो गया। इसके बारे में आयुष का इंटरवेंशन, जैसे कि सभी देश भर में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों ने कर रहे हैं, और इससे आगे भी होगा। जैसे कि सबसे पहले आयुष डिपार्टमेंट ने जो इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से खुद का जो एक SOP निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसी SOP का आधार लेके, यानी वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो उन्होंने कहा कि क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं, आयुर्वेद, योगा, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी, इसी के हिसाब से समझो हमने वैसे देखा। तो जब भी वायरस ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदा में यानी ढेर सारे मेडिसिन हैं, वो आज तक वायरस को ट्रीट करते आ रहे हैं। कितने सारे डिपेंड्स अपॉन, आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन रहते हैं वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के ऊपर, सप्त धातु के ऊपर और त्रिमल के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं कि वायरस किस तरह से उस पर इम्पैक्ट हुआ है, और इसी तरफ से उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है। हर एक आयुर्वेद का डॉक्टर, आयुर्वेद का वैद्य उसे देखते वक्त अलग अलग तरीके से देखेगा, हर एक की ट्रीटमेंट भी अलग रहेगी। फिर भी इसी मामले में हमने ये जाना कि इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है उसको ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, और ज्यादा करके इम्यूनिटी बूस्टर देने की बात कर रहे हैं। तो फिर तो हमने पहली बार जब हमने उस वायरस के बारे में अवेयरनेस हमारे स्टेट में करना स्टार्ट कर दिया, तब हमने हाउस टू हाउस सर्वे किया था। हाउस टू हाउस सर्वे में आयुष डिपार्टमेंट से जो सर्कुलर निकाला था कि इम्यूनिटी बूस्टर डोज का बढ़ाने के लिए, जैसे कि उन्होंने 3-4 मेडिसिन भी दी थी आयुष डिपार्टमेंट ने, वही सब कुछ हमने लोगों के घर घर तक पहुंचाया। और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर किस तरह से बढ़ सकती है, वही वो आयुष का फर्स्ट सर्कुलर which we have circulated all over in the state of the Goa, each house to house। और उसी के वास्ते यानी गुड़वेल रहने दो कि बाकी आयुर्वेद की सभी मेडिसिन, और इसके साथ ही योगा इंटीग्रेटेड, जैसे कि मैंने जिसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहने के लिए योगा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर देना चाहिए, और इसी का अवेयरनेस हमने स्टेट में बढ़ा दिया। ये सबसे पहले हमने किया, बाद में स्टेप बाय स्टेप बाकी सब कुछ करते गए। ओके, धन्यवाद सर। पवन जी, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। निकलता है अगला प्रश्न कि कैसे किया, क्या क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लिए गए, क्या उपाय योजना की गई, कोई औषधि उपचार और उसकी कुछ कमिटीज, इसके बारे में कुछ अगर स्पष्ट करेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि
सबसे पहले ग्रीन जोन में गोवा ही गया था, उसके लिए आपको अभिनंदन हो। क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लिए आयुर्वेद के? राइट, आपकी बात सही है कि सबसे पहले हम ग्रीन जोन में भी गए थे, उसके बाद में अगेन एक बार हमने जब हमारे सभी को अलाउ किया आने के लिए, तो सभी ज्यादा करके फॉरेन कंट्री से, बाहर के बाकी स्टेट से, स्पेशली द महाराष्ट्र कर्नाटक आने के बाद डे बाय डे पेशेंट बढ़ते गए और एक कंटेनमेंट जोन हमारे जुआरी अपने वास्को में मिला, मांगूर हिल बोल के, तो भी हमारे पेशेंट अभी बढ़ गए और अभी उसका नंबर अप टू 800 के आसपास गया। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि उसके बाद में हमारे आयुष डिपार्टमेंट, the deputy director of the Ayush, which is working under the directorate of the health services, एक्टिवली काम करता है। उनमें आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, इसके सिवा आयुर्वेदिक कॉलेज, तो गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय जो यहाँ पे शिरोडा में वर्किंग है, इन्हीं सभी डॉक्टर्स ने मिलके उसके ऊपर डिसाइड किया कि हम एग्जैक्टली इसके लिए क्या कर सकते हैं, और उन्होंने ही खुद का एक पोर्टल भी निकाला लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। उस पोर्टल पे जिस पूरे गोवा में कितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नाम, पता और उस पर अवेयरनेस करने के लिए, और उससे ऑथेंटिक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बढ़ाने के लिए, उनसे कंसल्टेशन के लिए उनके नाम घोषित कर दिए। और उसी के वास्ते मुझे लगता है जब ढेर सारे लोग उस पर कनेक्ट हो गए, और पहले ही आयुर्वेदिक कॉलेज गोवा में होने के वास्ते जैसे ही लोगों को लगा कि इसको आयुर्वेद से इम्यूनिटी बूस्टर उसकी बढ़ सकती है, they have started contact to the each and every doctors in each and everywhere in the taluka. The second portion is in homeopathic. Now everyone knows the homeopathy, the arsenic medicines, जो डोज इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से आयुष डिपार्टमेंट ने भी कहा कि आर्सेनिक मेडिसिन के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से लोगों को दे सकते हैं, और उसी की तभी स्टेप लिया। तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हिसाब से हमने आर्सेनिक मेडिसिन सभी लोगों को यानी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर ज्यादा बढ़े। इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स है ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ मेडिसिन। ऑल्सो द लोगों को अवेयरनेस करके आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी, नाउ ऑल्सो द सो मेनी इन अदर स्टेट the Siddha had also started by giving. We have not started regarding the Siddha medicine till now. We have not started to give that medicine. लेकिन जो जो कंटेनमेंट जोन रहा और बाकी उनके पेरीफेरी में जितने सारे, we have not directly tried our medicines on in COVID hospital because ICMR की परमिशन हमने नहीं ली थी, इसीलिए ICMR डायरेक्टली कोविड हॉस्पिटल में जो पॉजिटिव पेशेंट थे उन पे हमें ट्राई नहीं की। लेकिन कि बाकी लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर आते थे, बाकी स्टेट से आते थे, बाकी जितने जितने लोग रहते थे उनकी इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए एक तरफ से आयुर्वेदा के डॉक्टर, दूसरी तरफ से होम्योपैथिक के डॉक्टर्स और हमारे आयुष विंग ऑफ द गोवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अदर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, जितने सारे हमारी गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन स्टेट की एक एसोसिएशन है, उनके सभी पदाधिकारी पार्टिसिपेट हो गए और उन लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे पूरे स्टेट में अवेयरनेस बढ़ा दिया और बाकी इसीलिए मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मेडिसिन लोगों को दे दिया, इससे ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा तरह से बढ़ गया। सर बहुत बहुत अभिनंदन, आपने बहुत अच्छा मोबिलाइज किया आयुर्वेद के पूरे सेक्टर को और बहुत अच्छे से हम लोगों को भी एक्सप्लेन किया कि कैसे आपने इस उपाय योजना को कार्यान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीता जी। थैंक यू, धन्यवाद पवन जी। सर, आयुष से कितने लोगों को लाभ हुआ है इस समय पे, और आपने इस लाभों का आकलन कैसे किया है? आपका तो अभी आज की फिगर देखे वैसे गोवा में तो एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 800 केसेस पॉजिटिव हैं, 800 केसेस रिकवर्ड हो गए, 50% का रेट रिकवरी रेट है। एट प्रेजेंट द टेस्ट मोर देन 70,000 टेस्ट हमने आज तक कंप्लीट किए। इन रेशियो वाइज देखा पर लैख से तो वी आर द हाईएस्ट टेस्ट डूइंग इन द स्टेट। मैं आपको ये तो डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कितने लोगों के ऊपर हमने डायरेक्टली मेडिसिन दे दिया, उसका रिकॉर्ड रखा, ये तो डायरेक्टली हमने नहीं किया हमारे यानी फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे स्टेट में हमने जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन और जिस तालुका में पेशेंट्स रहे
वहाँ पे आयुर्वेदा या होम्योपैथी की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम 100% किया। हमारे हेल्थ पुलिस डिपार्टमेंट जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनमें, जैसे कि हम HCQ मेडिसिन जो फ्रंट वॉरियर में देते हैं उसी टाइप से, यानी च्यवनप्राश रहने दो, संचमनवटी रहने दो, बाकी सभी जैसे मेडिसिन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट, और आर्सेनिक रहने दो वो मेडिसिन किया। नाउ अभी हमने स्टेप ली है कि जैसे कि आयुष डिपार्टमेंट ने कहा कि आर्सेनिक मेडिसिन विच विल बी द एक्ट एज अ प्री प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तभी अभी हमने स्टेप लिया है कि गोवा के सभी घरों में हम आर्सेनिक की दवा जो है वो बांटने की डिसीजन ले लिया है। मंडे से अभी वो बांटना भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि दे कैन टेक दैट मेडिसिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स के हिसाब से हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी A to Z 100% घरों में हम आर्सेनिक की दवा बांटने की सोच रहे हैं, और ऑलरेडी प्रोसेस हैड स्टार्टेड। कुछ घरों में तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। नाउ द रेस्ट ऑफ द हाउसेस विद इन द 8 days विल कंप्लीट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्सेनिक। जो कोई समझो नहीं लेना चाहते तो उनको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से तो हमने अवेयरनेस, वी डिड द अवेयरनेस एंड वी आर सेइंग दैट द आर्सेनिक of the homeopathic medicines which is more useful as a prophylactic treatment in the COVID-19. Excellent sir, excellent. मुझे लगता है कि this is something entire state को cover करने से बहुत फायदा हो जाएगा। I think it is very useful. Thank you sir. पवन जी। सर एक बिल्कुल आपके क्षेत्र का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये गोवा के स्टेट में कितने आयुष प्रैक्टिशनर्स है? सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं आयुष के? और सर तीसरी मुख्य बहुत महत्वपूर्ण बात, इस कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए क्या आपने कोई नई रिक्रूटमेंट्स की है आयुष सेक्टर में? एक तो आपने पहला जो प्रश्न पूछा आयुष के कितने डॉक्टर्स गोवा में हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2000 आयुष प्रैक्टिस, नॉट मोर देन 3000 आयुष प्रैक्टिशनर इन द स्टेट। आयुर्वेदा और होम्योपैथ दोनों के मिलके पूरे स्टेट में मोर देन 3000 practitioners at present they are practicing in the state of Goa. They are registered under the Goa Board of Indian System of Medicines. There is one college of the Ayurveda college is also there in the state, and one Kamakhya Homeopathic Medical College that is also in the state. So there is an Ayurveda and homeopathy well known in the state at each and every corner of the state. Everyone knows about the Ayurveda and homeopathy. Now, being the Ayush Minister, Honorable Sri Sripadji Naik is also from our own state. Because of him also, there are the 2-3 projects that are coming in the state. One, there is an Ayush Research Center which is coming in the state. Recently, the foundation student work had also started, which is in the Dhargal Pedne. 2 district separate hospitals, one in the South Goa, one in the North Goa. 2 district hospitals from the Ayush department is also coming in the state at present. At present, there is a separate deputy director of the Ayush in the Directorate of the Health Services is working. The special post is created, and all the PSCs at present, approximately in all talukas, there are the 12 talukas. There are the 12 PSCs in all talukas. There are the Ayurveda and homeopathic separately. They are the doctors. They are working with the state government. Besides this, there are so many people, they are engaged under the National Rural Health Mission, or also in the Ayush Society, which is under the Ayush Cell, and which is under the Ayush Ministry. Approximately more than 150 doctors, the permanent and contract basis, they are working under the government of the Goa. So many medicines in the Ayurveda medicines also and homeopathic medicines also available in the each and every PHC. With the free of cost, we are distributing to the each and every people of the Goa, so that people are very much happy with the Ayush treatment. And so many private practitioners are also there. They are doing the Panchakarma Chikitsa in their own clinic. Our full-fledged Ayurveda hospital, which is under the Ayurvedic college, that is also, they are also doing the Panchakarma treatment in their Ayurveda medical college, and especially homeopathic treatment they are giving in their homeopathic medical college. This way, the people of the Goa has always benefited by the Ayurveda and homeopathy, by these 2 institutions, and by also by the government of Goa. Sir, the part about new recruitments, कोई नई रिक्रूटमेंट्स की सर? अभी कोविड के वास्ते हमने आयुर्वेदा और होम्योपैथी की कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं की है।
अभी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ ओनली फॉर द पैथोलैब, क्योंकि हम ने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, हमने डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्योंकि कोविड के बारे में गोवा में there was no single patholab earlier when we have started. After getting the first patient, we have established our full-fledged COVID hospital. We have started our patholab. We have sent our team to the NSV Pune. They have trained there, and now at present there are the 6 patholab where we are recruiting the new staff, more and more staff in our patholab, more and more nurses, those who are required in this special COVID care center, COVID hospital. It is not possible as to recruit the Ayush department staff. वेरी इम्प्रेसिव क्रीडेंशियल्स सर, वेरी गुड, वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने बड़े अच्छे से, बड़े शांति से हमको समझाया पूरा गोवा का स्ट्रक्चर, गोवा में कैसे काम कर रहा है आयुष विभाग। बहुत बहुत अभिनंदन सर। गीता जी। थैंक यू, धन्यवाद पवन जी। सर, अभी हम 3-3.5 महीने हो गया है कोविड के अंदर, और आपको बहुत इंसाइट्स मिला होगा इसके बारे में, इसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है एक्सेट्रा। आपको आयुष के बारे में भी काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा इस समय के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वे कौन से नए क्षेत्र हैं जहां आयुष कोविड प्रतिक्रिया में सुधार कर सकता है? इसके बारे में कहते वक्त मैं एक बात जरूर कहूंगा कि thanks for the ICMR. They had given the permission for the Ayush department to do the research over the COVID-19. They have given the permission, and those who wants to take the permission to do the research in the COVID-19 management, they are ready. I think as I discussed with the Ayush minister, 3-4 people have taken the permission, and they are doing the research along with the Ayurveda medicines. There are so many doctors are also, they are ready, actually private doctors are ready to do the research in this field, but particularly because of there is a lack of coordination between the private doctors and the state government. In many other states also I am talking about, there is till now not started, but 3-4 places they have started to doing the research on COVID-19 management along with the Ayurveda, and that will help for the people in future. Definitely I'm confident that this doctor will come with a good medicines in the COVID-19 management within short span of time. My best wishes for them also, because as I personally being the Ayurveda doctor, I know that there are so many medicines are there to treat the virus, and always in virus they have treated, but there is no authentic reports are there. Now our doctors, they are doing the authentic report, and definitely they'll submit this to the ICMR, and those who are doing this research to the ICMR. In future, I think this will happen. My best wishes for them. Yeah, thank you so much, sir. I think you are saying that research is the main area which you think which can bring a lot of advancements to Ayush and as well as for COVID management. Thank you, sir. Thank you for the insight. Pavan ji? Sir, ये तो सर रिसर्च बाहर की चीज हो गई थोड़ी। मैं जैसे अपने कोस्ट से शाखा की तरफ भी जाते हैं, एक मार्ग वो भी है, तो आयुर्वेद का सर ऐसा क्या विचार है आयुष का, आयुष पूरे सेक्टर का पब्लिक हेल्थ आउटरीच के लिए रिसर्च के अलावा नया ऐसा हम अंतर अपने आप में क्या परिवर्तन कर सकते हैं आयुष सेक्टर में, जिससे हमारा पब्लिक हेल्थ आउटरीच बहुत अच्छा हो और बढ़े? आपकी कोई योजना? आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है, फिर से एक बार? सर, आयुर्वेद में ऐसे क्या परिवर्तन अपेक्षित है आयुष सेक्टर में जिससे हमारा पब्लिक हेल्थ आउटरीच और बढ़े, बेहतर हो? अभी ये पता तो चल रहा है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ में, तो हम और नया क्या कर सकते हैं, हम अपने आप में क्या परिवर्तन करें? हाँ, आपने सही बात कही है। जब हम आयुर्वेद में परिवर्तन चाहते हैं, there should be the standardization of the protocol or standardization of the medicines should be there, क्योंकि हर एक वैद्य, हर एक डॉक्टर अपनी खुद की थेरेपी, अपनी खुद की पैथी और खुद का मेडिसिन, डायग्नोसिस तो एक ही रहता है, लेकिन हर एक के ट्रीटमेंट वो अलग अलग रहते हैं। फिर भी that should be the standardization of this protocol, standardization of the medicines by the Ayush department or by the CCIM Central Council of the Medicines, इससे होना चाहिए।
यानी कि पूरे देश भर में ये जाना जाए कि कोरोना वायरस के लिए, जैसे कि एलोपैथिक में बता देते हैं कि सपोज इफ समथिंग थ्रोट इन्फेक्शन हैज हैपेंड देन दिस एंटीबायोटिक्स कैन यू यूज फॉर द थ्रोट इन्फेक्शन। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन आयुर्वेदिक दवा में होना चाहिए। बीइंग सपोज यू आर ट्रीटिंग एज अ थ्रोट इन्फेक्शन, so these 5 types of medicine you can use. Any one doctor can choose any one of the 5. लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है और उसमें मॉडर्न एडवांसमेंट आना चाहिए। जैसे कि अभी सभी डॉक्टर्स दे आर यूजिंग द टूल्स फॉर डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर द डायग्नोसिस पर्पज, तो वैसे कि उनके ट्रीटमेंट पार्ट में भी उनको वो स्टैंडर्डाइजेशन आया तो आयुर्वेद और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है। और उसकी जैसे कि हम बोलते हैं और बाकी इंटीग्रेशन में फॉलो होना चाहिए। जब भी ढेर सारे डिजीजेज हैं जो इंटीग्रेटेड में इधर एलोपैथिक आयुर्वेद एक जगह पे आ गया तो अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। तो आयुष डिपार्टमेंट और द MCIM शुड गिव द इंटीग्रेशन मेडिसिन को अलाउ करना जरूरी है और इंटीग्रेटेड पे समझो रिसर्च होने लगे, डेट विल बी द मोर बेनिफिट। ये मेरा वैयक्तिक मत है, बीइंग नॉट एज अ CM बट एज अ डॉक्टर प्रमोद सावंत, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी प्रैक्टिस से और मैं जब सब कुछ यानी CCM मेंबर होने के वास्ते सब कुछ जब देखता हूँ तभी इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है और इंटीग्रेशन होने के वास्ते उसका फायदा ज्यादातर यानी पेशेंट को मिल सकता है, इसीलिए इंटीग्रेशन का परमिशन देना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपके विचार सुन के। एज अ डॉक्टर CM की पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कुछ आपके हाथ शायद बंधे हुए भी है, पर डॉक्टर के रूप में तो आप पूरी तरह से अभिव्यक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीता जी। थैंक यू सर। वो इंटीग्रेशन के बारे में आपने बताया सर, बहुत अच्छा, बहुत लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक क्वेश्चन है सर उसके ऊपर ही आधार पर, आयुष के लिए आपकी पोस्ट कोविड योजनाएं क्या है? पोस्ट कोविड फॉर आयुष को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहता है सर आपका स्टेट में? पोस्ट कोविड आयुष के बारे में इसका तो बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कि अभी आयुष के बारे में आयुर्वेद, योगा, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी सभी के पास तो अवेयरनेस है ही। तो मुझे लगता है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जब हम करेंगे, क्योंकि वायरस अभी तो जल्दी जाने वाला नहीं है, हम बताते हैं और बार बार सबको कहते भी आ रहे हैं कि ये वायरस बहुत साल तक रह सकता है। इधर हमें जैसे हम बता रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है और इससे ज़्यादा हमने बताना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में जो आहार और दिनचर्या, ऋतुचर्या जिस तरह से बताई है समझो वो फॉलो करें। मुझे लगता है राइटली, जैसे मैंने कहा, आहार, ऋतुचर्या और दिनचर्या। ऋतुचर्या के हिसाब से समझो हमने अपना सब कुछ यानी ऋतु के हिसाब से किया और दिनचर्या के हिसाब से सभी काम रहा, खाना पीना काम सब कुछ दिनचर्या के हिसाब से, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आवर इम्यूनिटी विल बिल्ड और ऑटोमेटिकली आवर इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी और हम इस वायरस से बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए आयुष के सभी डॉक्टर्स का बहुत बड़ा काम रहेगा कि आप दिनचर्या फॉलो करने के लिए और आपके प्रकृति के हिसाब से दिनचर्या, जिसकी जिस तरह के जो वात पित्त कफ त्रिदोष जो बताए हैं आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में भी इसके बारे में बहुत सारा कहा है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस दैट इज ऑल्सो फॉलोड, रेगुलर सिद्धा में भी कहा है और ढेर सारे डिफरेंट दिनचर्या ऋतुचर्या वो सब कुछ फॉलो किया, तभी मुझे लगता है कि आयुष डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम करे पूरे देश भर में, तो डेफिनेटली यानी इससे दिनचर्या ऋतुचर्या से सभी लोगों को हेल्दी रहने के लिए बहुत काम आ सकता है। तो सभी आयुष के प्रैक्टिशनर लोगों ने इसके बारे में ज्यादातर यानी पूरे जगह अवेयरनेस और एडुकेट करे लोगों को, ज्यादातर लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए और हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं। Very happy to hear that, sir, from your side, because to know that you will be using Ayush in improving the immunity of people in the days to come, even before the coronavirus is over.
and then make sure that people will be safe and sound without getting infected. Thank you so much. Pawan ji, next question. सर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम शब्दावली आजकल बड़ी प्रचलित है, तो सर जैसे कि अभी गीता जी ने भी क्या आपने कहा कि ये तो कोरोना तो हो सकता है कि जल्दी चला जाए, पर कोई नई समस्या आ जाएगी, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद की या आयुष की ताकत को बढ़ाने के लिए, तो आयुष की हेल्प मदद करते हुए क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई योजना हो सकती है? हो तो कैसे हो? एज अ प्लानर, विजुअलाइजर, विजनरी हम जानना चाहते हैं सर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल हो सकती है। मुझे लगता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नॉट ओनली माय ओन स्टेट बट पूरे देश भर में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द आयुर्वेदा, देयर आर सो मेनी इयर्स दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. So many colleges are there, so many Ayurvedic colleges, homeopathic colleges, pharmaceuticals companies, so many people they are doing the research in the field of Ayurveda. इन सभी के लोगों के साथ में बल्कि उस स्टेट ने काम करना स्टार्ट कर दिया और आयुष डिपार्टमेंट ने उन्हें परमिशन दे दिया, तो मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में we can do much, not only the awareness, not only the education, बट इसी के साथ में वी कैन तो इम्यूनिटी बूस्टर डोज तो लोगों के साथ में पहुंचाएंगे, बट इसके साथ में मुझे लगता है ढेर सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस पे काम कर सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं, इन सभी लोगों को एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च करने के लिए देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। ऐसे मेरा वैयक्तिक मत है मेरा कि रिसर्च करने के लिए अलाउ करें, क्योंकि ये रिसर्च करने के लिए अलाउ करें तो ज़्यादा करके लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। और जैसे कि आयुर्वेदा इज आवर एंशिएंट मेडिसिन जो इस देश से कितने सालों से इस देश में है, तो डेफिनेटली हर वायरस की 450 वाले अपने ग्रंथ इधर चरक हो जाए, सुश्रुत हो जाए, वाग्भट हो जाए, इन ग्रंथों में भी वायरस के बारे में कहा है। चरक में जब उसके चरक सुश्रुत के ग्रंथ में जब वायरस, डिफरेंट वायरस के बारे में कितने सालों से पहले कहा हुआ है, तो डेफिनेटली दैट मेडिसिन विल वर्क ऑन दिस वायरस, इसीलिए उसके ऊपर रिसर्च करने के देने के लिए दैट इज बिटवीन द आयुष डिपार्टमेंट एंड द ICMR, they can permit them so that public private partnership can come, they can do the research, they can come with the medicines, और इस तरह से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत बढ़िया सर, अच्छा विजन रहा है, तो पूरे देश में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है सर इस विषय पर, इस आइडिया को लेकर। गीता जी। यस, थैंक यू अकाउंट जी। सर एक दूसरा क्वेश्चन है इस समय पे, कोविड प्रबंधन कार्यक्रम में आयुष का उपयोग करते समय सबसे अधिक उत्साहजनक क्षण क्या था आपका? बीइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, इट इज मेरे लिए तो बहुत उत्साहजनक मोमेंट था, क्योंकि जैसे जब आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ सर्कुलर निकाल दिया कि हम इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ से आयुर्वेद का मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और मैंने स्टेट में भी इसीलिए इम्यूनिटी बूस्टर ने बांटने की, उसकी अवेयरनेस करने की स्टार्ट कर दिया, वही मुझे मेरे लिए बहुत उत्साहजनक बात है। और आज जब हम आयुष डिपार्टमेंट के बाकी सभी मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ से सभी जगह पे यूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है, और इस समझो रिसर्च के बाद अपने डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, और सबसे पहले समझो आयुर्वेद में इसका मेडिसिन आया रिसर्च के बाद, तो बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात रहेगी। इसीलिए मेरे सभी जो डॉक्टर्स जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके लास्ट तक सभी जगह पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली दे विल कम विद immunity vaccines also, some will come with the medicines also. So many people, they are working in the different, in the allopathy also they are doing the very good work, for the vaccine also they are doing, definitely कोई ना कोई तो इसके medicines या vaccines लेके आएगा ही। फिर से आयुर्वेदा में समझो इस तरह का medicines आया और विच इज अप्रूव्ड, ICMR ने कर दिया, तो मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात रहेगी बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर। Yes, that is right. In fact, हमने आपका फोटो भी देखा है और वीडियो भी देखा है कि न्यूज में
जब आप खुद क्लिनिक में बैठे थे पेशेंट्स को देखते हुए सीएम होने के बाद, तो बहुत बहुत हैप्पी हो गया हम उसको देख के। इट वाज रियली रियली वंडरफुल टू सी यू यू नो ऑन द ग्राउंड एंड यू नो डूइंग दिस वर्क। थैंक यू सो मच सर। पवन जी अगले क्वेश्चन। सर मैं उसी गर्व की अनुभूति को और थोड़ा सा व्याख्यायित करना चाहता हूं सर, कि एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड एज अ सीएम, आपके कुछ व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ आप साझा करेंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा सर। गर्व की अनुभूति तो हम अभी कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमारा ही कोई अपना बंदा जो हमारे वात पित्त कफ जो वैसे बहुत समझने के लिए कठिन है, आप तो तुरंत समझ जाते हैं। तो आपके व्यक्तिगत अनुभव अगर आप साझा करें आयुर्वेद की चिकित्सा को लेकर तो हमें बड़ा आनंद होगा सर, अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आयुर्वेद से मैं 96 में पास आउट होने से बाद मैं खुद की मेरी प्रैक्टिस, बाद में आयुर्वेदिक फिजिशियन आई जॉइन इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑल्सो, और वहाँ पे भी मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन बोल के काम कर रहा था। मेरे लिए गर्व की बात है जब टोटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से और आयुर्वेद की पंचकर्मा ट्रीटमेंट जिस तरह से मेरे स्टेट में बढ़ रही हैं और जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि ढेर सारे पीपल यानी जो लोग आयुर्वेद की दवा लेने लगेंगे आयुर्वेद के पंचकर्मा के ट्रीटमेंट के लिए, उसी के ऊपर यानी जरूरी आयुर्वेद पंचकर्मा और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लेंगे, यही मुझे लगता है। और वही मेरे लिए यानी जिस तरह से केरल राज्य में अभी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत यानी मैक्सिमम पीपल आर प्रीफर टू टेक द आयुर्वेदा मेडिसिन, उसी तरह से गोवा में अल्सो आयुर्वेद का स्कोप ज़्यादा बढ़े, यही मेरा ये है कि मेरे प्राइवेट प्रैक्टिशनर और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोशिश जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे मन की बात आपने कह दी, आपके मन की बात हमारी एक ही बात हो गई, तो संयोग बड़ा अच्छा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने सर अपना बहुत प्रीशियस समय निकाला, हमने आधे घंटे का सोचा था, आपने हमको 45 मिनट दिए, इसलिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं सर आपका। और मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के रूप में माननीय आदरणीय श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी से, जो हमारे मेंटर है, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो अपना अभी पूरे आयुर टॉक का सर ये अंतिम पड़ाव था, इस पे पूरी एक विहंगम दृष्टि से कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में अपनी बात कुछ साझा करें हमारे साथ। जयंत जी। सभी को नमस्कार। आज अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद जी सावंत विशेष रूप से आए, इसलिए उनका मैं आभारी हूं। और उन्होंने गोवा राज्य में जिस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया, आयुष जो पद्धतियां है अपनी, और विशेष रूप से आयुर्वेद को लेकर, तो उसके कारण कैसे अनुभव रहे उनके, उसको उन्होंने साझा किया, तो ये हम सबके लिए एक बड़ी अच्छी बात रही। मैं प्रारंभ से ही इस आयुर टॉक्स को सुनता आया हूं। अपने देश के आयुष मंत्री श्रीपाद जी नाइक और वहां के सचिव मंत्रालय के वैद्य राजेश जी कोटेचा, इनके द्वारा इस एक प्रकार से मालिका का प्रारंभ किया गया। और जैसे मैं सुनता गया अभी तक प्रमोद जी ने जो सारे अनुभव हमें साझा किए, तो मेरा अनुभव यह रहा कि ऑल दीज इंटरेक्शंस वेर काइंड ऑफ आई ओपनिंग इंटरेक्शंस। यानी जिस प्रकार से अपने देश में आयुर्वेद लोगों तक पहुंचा है और जहां जहां पर आयुर्वेद का उपयोग करके लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास किया गया, उसमें जो सफलता मिली है वो इन सारी अनुभवों से सामने आई है। और उसका एक मेरे मन में जो बात आई वो ऐसी है कि इसका एक संकलन होना चाहिए। वी नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल दीज इंटरेक्शंस फॉर पोस्टेरिटी। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें ये केवल आज रुकने वाली है ऐसा नहीं, तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ बातें इस प्रकार की आती रहेगी। एक हमें पता है कि अमेरिका ने 1975 में ये घोषित किया, अमेरिका के लिए कम से कम, कि इसके बाद संक्रामक रोग ये अब इतिहास के पृष्ठों पर ही हमें मिलेंगे, इसके आगे होंगे नहीं। इस प्रकार का एक पता नहीं उसको क्या कहना चाहिए, गर्वोक्ति कह सकते हैं, उन्होंने वहां घोषित की थी। लेकिन हम जानते हैं कि लगातार उसके बाद 1985 के आसपास से आगे
इस प्रकार के संक्रामक रोग आते गए और उनका एक बड़ा विकराल रूप हमने अनुभव किया पूरे विश्व में। और अभी ये महामारी ऐसी है कि जिसने पूरे विश्व को एक अपने डर के अंदर समाहित किया है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आयुर्वेद का जो एक विशेष स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी मुझे एक बड़ी बात ध्यान में आती है कि जो आधुनिक विज्ञान की बातें हैं वो व्यक्ति बीमार होने के बाद या बीमारी फैलने के बाद वहां पर सारा शोध कार्य शुरू होता है। लेकिन हमारे देश की विशेषता यह है कि व्यक्ति बीमार न हो इसके लिए कितना अनुसंधान, कितना शोध कार्य अपने देश में हुआ, ये अपने देश की विशेषता है और वो प्रकट करने वाला विधान या विज्ञान है आयुर्वेद। तो पूरे विश्व ने इससे सीख लेनी चाहिए, अन्यथा हम बार बार यही करते रहेंगे। बीमारी आएगी, बीमारी आने के बाद उसके ऊपर शोध कार्य करना कि ये विषाणु वायरस कौन सा है, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तब तक बहुत बड़ा नुकसान पूरे विश्व में अनुभव कर रहे हम उस प्रकार का हो सकता है। इसको ध्यान में रखकर स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना, इसके बारे में बहुत विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि भारत आयुर्वेद के द्वारा यही एक बात विश्व के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है और शायद इस बीमारी के कारण, महामारी के कारण ये बात विश्व को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आएगी। उस दृष्टि से ये जो सारी श्रृंखला हमने की, मेरे जो सहयोगी सारे वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन में है उन्होंने इसकी कल्पना की और अपने देश के सफल लोग इस मालिका के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया, वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। और मैं विश्वास रखता हूं कि इसके कारण एक बहुत अच्छी जागृति अपने समाज में हुई है। और मैं ऐसी एक इच्छा रखता हूं कि ये जो सारी श्रृंखला चली इसके विचार जल्दी ही संकलित होंगे और वो समाज के लिए और अपने सरकार के लिए भी हम प्रस्तुत कर पाएंगे। उससे बहुत बड़ा लाभ भविष्य में हम सबको होगा। फिर एक बार मैं आप सभी को वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के जितने न्यासी है जिन्होंने इसकी कल्पना की और लोगों तक इतने सारे अनुभव पहुंचाने का एक विचार किया, इसलिए फिर एक बार उनको धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। प्रमोद जी आ जाए इसलिए फिर एक बार उनका भी धन्यवाद। और उसके पहले भी जितने सारे अपने वरिष्ठ विद्वान आए जिन्होंने प्रत्यक्ष मैदान में उतरकर आयुर्वेद की इन बहुत अच्छी बल का उन्होंने अनुभव किया, उनको सभी को भी धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी।